Welcome dear students. So today class 8th chapter number 6 square and square root. Till now we have learned so many things. We have learned how to find the square of a number by different methods, how to find square root of a number, that too by different methods, and we have done certain applications too also. So now today we have a special class that is for the topic applications of square and square roots, where you need to give a thought to the questions. Means now directly I will not ask you कि इसमें कुछ ऐड कर दो, माइनस कर दो, मल्टीप्लाई कर दो या डिवाइड कर दो so that वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए. अब at this point of time we need to give a thought that what should be done to proceed in a particular question, or I will say problem. Like I will take interesting questions here. Suppose I ask you find the greatest 4-digit number which is a perfect square. Write a 4-digit number, greatest 4-digit number which is a perfect square. Now if I ask you what is the greatest 4-digit number, I hope, I expect that each one of you will answer correctly. So what that is? Yes, it is 9999. But dear children, it is not a perfect square. So the question is something different. They are not asking greatest 4-digit number. अगर वो पूछा गया होता तो डेफिनेटली यही आंसर है, पर उन्होंने पूछा है कि ग्रेटेस्ट 4-digit नंबर बताओ, साथ ही साथ वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी हो. तो अब इसको रिलेट करो कि आपने क्या सीखा है पहले. तो अब बेटा अगर ध्यान दो कि अगर मैं इसमें कोई भी नंबर ऐड करूं, चलो अगर 1 भी ऐड कर दूं इसमें, मान लो अगर 1 भी ऐड कर दूं तो ये नंबर क्या बन जाएगा? 10,000, विच इज अ 5-digit नंबर. लेकिन क्वेश्चन हमारा किसके बारे में है? 4-digit नंबर के बारे में. तो मीन्स वो हमसे क्या पूछना चाह रहा है, इस क्वेश्चन को रिलेट करो आपने जो पहले सीखा है. ही इज आस्किंग अस कि फाइंड द लीस्ट नंबर विच शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस नंबर टू मेक इट अ perfect square. So we will proceed in the same way. Just see how. So I am doing this question for you. Let us proceed the question accordingly. Make the pairs, long division. So 9 9s are 81, 8 1. Pair will come down. Here will come twice of this. 9 2s are 18. So we have 18 already. सेम नंबर अगर 9 लिख रहे हो तो 9 के साथ ही मल्टीप्लाई करके देखो. 180817. So 9 9 1701. So you will find 8 9 and 1. So 198 is the number which should be subtracted from 9999 to make it a perfect square. So just see. So 9999, अगर हम इसमें से 198 माइनस कर दें, then we will get 19801, which is a 4-digit number also and which is a perfect square also. अगर आप इसके बाद का कोई भी नंबर चेक करो, 9801 के बाद मतलब 9802 so on up to this number, then no number you will find a perfect square number. Means this is the greatest 4-digit number which is a perfect square. So dear children, it is the application of the question which we have done in the last lecture, that what should be subtracted from a number to make it a perfect square. And you can cross check your answer as well. Find the square root of 9801. So this is in pair. 9 9s are 81. माइनस करो, पूरा पेयर नीचे आ गया 01. 18 अब 9 पे जाएगा ये 1701. So 9801 is the square of 99 and 9801 is the greatest 4-digit number which is a perfect square. And same kind of application I am taking as an example. So
लेट अस टेक अनदर एग्जाम्पल ऑफ द सेम टाइप. बेटा यू जस्ट फोकस कि आपको थॉट कहाँ पे जाके देना है कि इसको कैसे करना है क्वेश्चन को. ठीक है. सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. आई एम एक्सप्लेनिंग ईच एंड एवरीथिंग. सो द क्वेश्चन इज, in a school we have 500 students in total. Overall in a school there are 500 students. The PT teacher of the school, PT teacher, physical education teacher, wants to make all the students stand by some pattern. And what pattern he chooses? He says कि जितनी रोज होंगी उतने ही हर रोज में बच्चे होंगे. जैसे मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिया, मान लो 1 2 3 4 5 कि he wants to make 5 rows like this. तो 5 रोज बना रहा है तो हर रो में बच्चे भी कितने होंगे? 1 2 3 4 5. अगर 7 रोज बन रही हैं तो 7 बच्चे. अगर 10 रोज बन रही हैं तो 10 बच्चे सभी में होंगे. मीन्स हैव यू अंडरस्टूड, हैव यू गॉट द हिंट कि एक परफेक्ट स्क्वायर बनना है. सो क्वेश्चन ये है कि अगर किसी स्कूल में 500 स्टूडेंट्स हैं और पीटी टीचर वांट्स टू डू सच एन अरेंजमेंट जहां पे नंबर ऑफ रोज is equal to number of columns हो, they are asking that how many students will be left. So बेटा एक तो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल यहाँ पे मिल रही. कैसे? अब 500 स्टूडेंट हैं स्कूल में, तो ऐसा तो नहीं है कि अभी और अरेंजमेंट के लिए इमीडिएटली मैं कहीं और से बच्चे ले आऊँ, है ना. तो इसीलिए देखो क्वेश्चन भी क्या पूछा उन्होंने, हाउ मच स्टूडेंट्स विल बी लेफ्ट. तो मतलब ये क्वेश्चन क्या हुआ, दैट व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 500 to make it a perfect square. So let us find that. So we will proceed according to long division. I will take here 500 students, make a pair, 2 2s are 4, 1 remainder, pair will come down. So here twice of this, double of this, 2 2s are 4. So let us check. 2 पे करेंगे बेटा, 4 is already there. 2 लिखा है तो 2 से ही मल्टीप्लाई 84. अगर 3 लिखेंगे 3 से मल्टीप्लाई 129. 100 से बड़ा हो गया तो आप यहां रुक जाओगे. 2 पे जाएगा 84, माइनस करो 16. सो क्या होगा, 16 स्टूडेंट्स विल बी लेफ्ट इन सच एन अरेंजमेंट. 16 स्टूडेंट्स विल बी लेफ्ट इन दिस अरेंजमेंट. सो लेफ्ट स्टूडेंट कितने आ गए? लेफ्ट स्टूडेंट हो गए हमारे कितने? 16. तो अरेंज्ड कितने हुए? यहीं से बेटा सारी इंफॉर्मेशन निकालेंगे. अरेंज्ड स्टूडेंट्स 500 माइनस 16, तो ये आगे कितने? 484. इज इट फाइन? एंड यू कैन चेक 484 इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ नंबर 22. तो जो ये 22 है, दिस विल बी द नंबर ऑफ रोज एज वेल एज number of student in each row. You can cross check. 22 को 22 से करके देखो. 2 2s are 4, 2 2s are 4, 4 4 8 4. ये देखो क्रॉस चेक. सो 22 ही रोज बनेगी और 22 ही हर रो में क्या होंगे? बच्चे होंगे, जो कि हमें यहां से पता चला. 16 रिमाइंडर है. सो मीन्स 16 स्टूडेंट्स विल बी लेफ्ट इन द अरेंजमेंट. It means how many have been arranged? That is 500 minus 16, 484 in 22 rows, as well as number of student in each row is 22. So now let us take another example of another. So let us take another example now. I will change the concept now. Suppose I ask you कि find the least 4-digit number. Least you can say smallest 4-digit number which is a perfect square. Find the smallest 4-digit number which is a perfect square number. So now beta listen, what is the smallest 4-digit number? If I ask you, what is that? 100, this 1000. 1 2 3 4, these are the 4 digit. So 1000 is the smallest 4-digit number. अब अगर आप इससे एक भी कम कर दो, -1, तो 999, 999 आ जाएगा, विच इज अ 3-digit नंबर. तो देखो सीधा ही हमें एक हिंट मिल रहा है. अब 1000 में देखो 3 नंबर ऑफ जीरोज है. मैंने शुरू में पहले उसमें करवाया था इंट्रोडक्शन में
कि 3 जीरोज हैं, ऑड जीरोज हैं, तो इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। 1000 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो इसका मतलब अब 1000 से अगर आप एक कम कर दोगे, मतलब अगर आप चलोगे सब्ट्रैक्शन वाले हिसाब से, फिर तो आप 3 डिजिट नंबर में चले गए। तो ये क्वेश्चन क्या है, व्हाट शुड बी एडेड इन 1000 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। सो लेट अस प्रोसीड इन द सेम मैनर। तो यहां पे व्हाट शुड बी एडेड वाला वी यूज टू डू बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। सो आई विल राइट हियर 1000 पेयर, सो फर्स्ट 10 है, सो 3 3s are 9, सो 1 इज द रिमाइंडर, पेयर विल कम डाउन, यहां इसका डबल, ट्वाइस ऑफ दिस, 3 2s are 6। अब ध्यान देना बेटा, क्वेश्चन है व्हाट शुड बी एडेड। याद करो पिछला लेक्चर, और यू कैन गो थ्रू द वीडियो वंस अगेन ऑफ द लास्ट लेक्चर। सो जब एडिशन होती है, जैसे अब यहां 6 है, तो इफ आई राइट 1 हियर, सो इट विल कम 61 smaller than 100, so we used to write this number, but now when what should be added है, तो मैंने क्या बोला था, एक स्टेप आगे जाना है हमने। तो यहां मेरे पास मान लो मैं 2 लिखता हूं 6 के साथ, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये कितना आएगा 124, जो कि 100 से बड़ा है। साथ वाला बिल्कुल 1 से करने से 61 आया, जो कि छोटा है, 2 करने से 124, अब ऐसे तो 3 से भी बड़ा आएगा, लेकिन हमें इमीडिएटली साथ वाला लेना है। तो 2 यहां लिख देंगे, 2 यहां लिख देंगे, सो दिस इज 124। जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा -24। और अगर बेटा याद हो, आई हैव टॉट यू दैट दिस माइनस साइन 24 के साथ इसलिए है, वो हमें ये बताना चाह रहा है माइनस साइन, कि जो 1000 है वो परफेक्ट स्क्वायर से 24 दूर है। सो माइनस साइन ये इंडिकेट करता है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसमें 1000 में 24 ऐड कर दोगे, तो 1024 इज योर आंसर। मीन्स 1024 is the smallest 4 digit number which is a perfect square, and you can cross check, it is the square of number 32। 32 का perfect square। मतलब अब अगर आप 1000 से लेकर 1023 तक चेक करोगे, तो नो परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज देयर। सो फर्स्ट 4 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज 1024। और ये आपने पता कैसे किया, बाय द एप्लीकेशन ऑफ व्हाट शुड बी एडेड इन अ नंबर टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। सो लेट अस टेक अनदर एग्जांपल ऑफ सेम टाइप। सो let us take another example. The number is same because I want to cover your all the examples of your NCERT. So all these questions are from your examples as well as exercises. So one question is there where they are saying that a gardener has 1000 plants. A gardener has 1000 plants. Again the same case of PT teacher. He wants to plant these plants in such a way कि number of rows and number of columns should remain same, means they are forming what, square. So they are asking us, now listen the question and try to understand. Now the question is something different. They are asking what they are asking. Let me again recall the question. Question is, a gardener already has 1000 plants with him. Then he thought कि I have to arrange the plants in such a way कि number of rows equal to number of columns। वही PT टीचर वाली, कि जितनी रोज होंगी उतने ही हर रो में प्लांट लगेंगे। PT टीचर की रिकॉल करा दूं, जितनी रोज होंगी उतने ही हर रो में बच्चे खड़े होंगे। जैसे 22 आंसर आया था उसका, अगर याद हो, कि 22 ही रोज बनेगी और हर रो में ही 22 बच्चे होंगे। सो क्वेश्चन इज दिस, that how many more plants is required, how many more plants are required for such an arrangement। तो मतलब ये क्वेश्चन क्या हुआ, अब उसके पास कितने 1000 ऑलरेडी हैं, तो क्वेश्चन ये हुआ that how many more plants are required for the arrangement, for which kind of arrangement, to make a square, means what should be added in 1000 to make it a perfect square। So same question which I had done previously. So 1000 is not a perfect square, सीधा बेटा पता चल रहा है,
क्योंकि ऑड नंबर ऑफ जीरोज है, सो इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है हमने। पेयर 3 3 जा 9, 100, 3 2 जा 6। अगेन व्हाट शुड बी एडेड वाला है, तो एक स्टेप बड़ा लेना है 100 से हमने। कैसे? 1 से करोगे तो 61, 2 से करोगे बेटा तो 124। सो 2 पे लेके जाओगे इसको 124, सो -24। मतलब फॉर दैट अरेंजमेंट द गार्डनर हैज 24 plants less, means he wants 24 more plants for such an arrangement. So this is your answer, that he wants 24 more plants. Now this question can be asked in different ways, that how many more plants are required? 24 more plants are required. So if they ask you that how many rows will be there, so it is the answer 32 number of rows. Is it fine? How many plants in each row? Again the answer is same, 32 plants in the each row. I hope it is clear to you. Now I will take one last example, that how we can use this concept of algebra of square and square root in our geometry. So dear children, let us find out that how the square and square root, this concept helps us in the geometry as well. Means algebra basically, let me tell you, are the roots of the whole mathematics. We use algebra in all the chapters, irrespective of the class, irrespective of the units, irrespective of the chapter, irrespective of the topics. We use algebra everywhere. Like one example I have taken, I have made here right angle triangle. I hope you all are able to see it. Right angle triangle in which one angle is right angle. Now as you all know that each triangle has 3 sides, same is here. So what special is with the right angle triangle? So याद रखना बेटा, right angle triangle कुछ हमें facts अपने आप देता है, जैसे कि number 1, in a right angle triangle one angle is right angle, it means its other 2 angles will be acute. Remember this thing, क्योंकि हमें मालूम है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, एक 90 हो गया, तो इसका मतलब बचे हुए 2 एंगल का सम भी 90 होगा। दोनों का सम 90 मीन्स दोनों ही एंगल 90 से छोटे हैं, मीन्स एक्यूट हैं। दूसरी बात, नाउ लेट अस टॉक अबाउट द साइड्स। इन तीनों साइड्स को स्पेशल नाम देते हैं हम राइट एंगल ट्राइंगल के केस में। द साइड अपोजिट टू राइट एंगल इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज। व्हाट दैट इज कॉल्ड? हाइपोटेन्यूज, कैपिटल H से डिनोट करते हैं इसको, हाइपोटेन्यूज। द साइड अपोजिट टू राइट एंगल, आपकी राइट एंगल जैसे मर्जी बनी हो घूम के, पहचान करनी बहुत आसान है। 90 डिग्री एंगल के अपोजिट जो साइड होगी दैट इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज, एंड इट इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। जो 2 साइड बच जाती हैं उसमें से एक को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, परपेंडिकुलर P से डिनोट करते हैं, और तीसरी को हम बोलते हैं बेस, B से डिनोट करते हैं। अब बेटा जितनी भी प्रॉब्लम्स है राइट एंगल ट्राइंगल की, दिस आई एम टेलिंग यू ऑन द ग्राउंड लेवल, ठीक है। तो जितनी भी प्रॉब्लम्स है राइट एंगल ट्राइंगल की, जनरली वी सॉल्व विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। अब आप लोग हैरान हो रहे होंगे कि मैं स्क्वायर रूट में ज्योमेट्री की बात कहां से ले आया। अभी आपको पता चल जाएगा। मैंने क्या बोला कि तीनों साइड के स्पेशल नाम है, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर, बेस। साइड अपोजिट टू राइट एंगल इज हाइपोटेन्यूज। बची हुई 2 साइडों में से किसी को भी आप एक को परपेंडिकुलर ले सकते हो, तीसरी को बेस ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बोला कि ईच एंड एवरी प्रॉब्लम ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज सॉल्व्ड विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। So what is the Pythagoras theorem? It states that h square is equal to p square plus b square. I hope now you are able to relate this theorem with square and square roots. So h square means hypotenuse का square is equal to perpendicular का square plus base का square. Means squares and square root का जो concept है that we use to find
any one side of a right angle triangle if its two sides are given. See how. I will take one example from your book that it is a right angle triangle ABC, right angled at B. ये सबसे important चीज है, right angled at B. तो आप 90 डिग्री पे ही B लोगे. आप C इधर ले सकते हो, A इधर ले सकते हो, लेकिन जो राइट एंगल बोला गया है क्वेश्चन में उसको राइट एंगल वाले वर्टेक्स पे ही रखना है, बस इतना जरूरी है. नाउ दे आर सेइंग इफ योर AB इज 8 सेंटीमीटर, BC इज 6 सेंटीमीटर, फाइंड AC. Find AC. If your AB is 8 सेंटीमीटर, BC is 6 सेंटीमीटर, find AC. तो अब आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाओ. देखो क्या निकालना है. AC क्या चीज है आपकी, हाइपोटेन्यूज है. तो यहां पे लिखो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू P. परपेंडिकुलर क्या है, AB का स्क्वायर प्लस बेस क्या है आपका, BC का स्क्वायर. दैट्स इट. दिस इज जनरल पाइथागोरस थ्योरम. फिर आपने क्या किया, अपनी ट्रायंगल के हिसाब से हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस को लिखा. आपने देखा कि 90 के अपोजिट कौन सी साइड है आपके पास, AC, तो उसको हाइपोटेन्यूज की जगह लिख दिया. परपेंडिकुलर की जगह कौन सी साइड है, AB, यहाँ AB लिख दिया. बेस की जगह क्या है, 6 है, BC है तो BC लिख दिया. नाउ फिल द वैल्यूज. आपने AC निकालना है. AC स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर. तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 64 प्लस 36. तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 100. वही चीज AC इज इक्वल टू, इधर स्क्वायर है उधर जाके स्क्वायर रूट, अंडर रूट ऑफ 100. तो AC इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. सो इन दिस वे व्हेन एनी टू साइड्स आर गिवन यू कैन ऑलवेज फाइंड थर्ड साइड. एंड बेटा डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ऑलवेज मार्क योर राइट एंगल. उस हिसाब से सबसे पहले हाइपोटेन्यूज को मार्क करो, फिर परपेंडिकुलर को और बेस को, फिर जो जो चीज दी गई है उसको अपनी जगह पे फिल कर दो वैल्यूज को. आई होप इट इज क्लियर टू यू. नाउ द लास्ट एग्जांपल आई एम टेकिंग अगेन फ्रॉम द ज्योमेट्री. सो बेटा टुडेज लास्ट क्वेश्चन ऑफ द लेक्चर आई हैव टेकन अगेन फ्रॉम ज्योमेट्री. फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर हुज एरिया इज 441 मीटर स्क्वायर. Now the area of the square is given, we need to find its side. तो उसके लिए बेटा जरूरी है हमें स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला पता हो. तो छोटी क्लासेस तक अगर याद हो, 7 तक आई थिंक सो, आप लिखते रहे हो कि एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड. साइड इंटू साइड मीन्स साइड का स्क्वायर. सो मीन्स एरिया ऑफ स्क्वायर इज गिवन हाउ मच, 441 मीटर स्क्वायर. So what is area of square? Side multiply by side, 441 meter square. Side into side को can you write side का square is equal to 441. तो side is equal to square, उधर जाके क्या हो जाएगा, square root, under root 441. Children, here now it's your choice that you want to find its root by prime factorization or by long division. It is entirely up to you. So यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइड इज इक्वल टू अंडर रूट. इफ आई डू द फैक्टराइजेशन देन इट विल गो ऑन 3. आई होप यू ऑल नो इट विल गो ऑन 3. आई कैन मेक द फैक्टर्स फॉर यू हियर. 441, 3 पे 7, 3 पे अगेन 4, 9 3 जा 7, 7 7 जा 7 1 जा. सो दिस इज 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7 पेयर. तो साइड इज इक्वल टू 3, एक इसका और एक इसका 7. तो साइड इज इक्वल टू 7 3 जा 21, सॉरी मीटर, इट्स मीटर. आई होप बेटा इट इज क्लियर टू यू. नाउ आई थिंक यू विल बी एबल टू do all the different type of questions because I have covered almost all the type of sums here. So I want you people to revise the entire chapter. Once you finish these exercises and this video, then again go through the chapter, so that if you feel any problem you can overcome that. So thank you beta, God bless you all.